right? So in this video, we will now basically see how do we conduct a hypothesis testing. Now before that, as I told you in the last video, there are important 7 or 8 important steps which we have to keep in mind before conducting a hypothesis testing. Starting with, you have to set up a null hypothesis and an alternate hypothesis, and then you have to identify. There are two very important regions. We have to identify the critical region. We have to identify the critical region, and the critical region is basically dependent on your choice of alpha. It is basically dependent on choice of alpha. What is alpha? Alpha is the probability of type 1 error. Alpha is the probability of type 1 error. What is type 1 error? It is the error which a researcher commits when he or she rejects a true null hypothesis, that the null hypothesis was true, but then you have rejected it. Okay. So I'll first demonstrate. Suppose I'll first demonstrate the reverse procedure. What is the meaning of critical, to demonstrate what is the meaning of critical region, and then we will move on to the formal derivation of the critical region. And this example is very important. So the question is, the drying time of a certain type of paint, the drying time of a certain type of paint is known to be normally distributed. The drying time of a certain type of paint is known to be normally distributed with mean value 75 minutes and standard deviation 9 minutes. Okay. Now chemists, or these are not your pharmacy wali chemists, but people who study chemistry, chemists have proposed a new additive. Chemists have proposed a new additive designed to decrease average drying time. It is believed that the application of this additive, it is believed that the application of this additive will reduce the average drying time. Okay. Now this is checked. This is checked by taking a sample of 25 paints. Now let us understand this question. So the drying time of a certain type of paint, मतलब कितनी देर में पेंट सूखता है, उसका जो ड्राइंग टाइम है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो दिया हुआ क्वेश्चन में, दैट इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और मीन ड्राइंग टाइम मतलब ऑन एन एवरेज पेंट को सूखने में कितना टाइम लगता है, 75 मिनट, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 9 मिनट. ठीक है. Now chemists have proposed a new additive
designed to decrease average drying time. It is believed that the application of this additive will reduce the average drying time. This is checked by taking a sample of 25 paints. So अब हमने क्या किया, तो केमिस्ट हैव प्रपोज कि अगर आप ये एक एडिटिव डालोगे तो इससे जो है पेंट जो है वो जल्दी सूख जाएगा, इससे यानी कि एवरेज ड्राइंग टाइम जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, एवरेज ड्राइंग टाइम जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने कैसे चेक किया, अब आपने सारे पेंट बॉक्सेस में एडिटिव डाल के नहीं चेक किया, आपने सिर्फ सपोज 25 पेंट बॉक्सेस लिए, ठीक है, और उनका सैंपल लिया और उसमें ये चेक किया। सो व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस हमेशा आपको याद रखना है, इट इज द हाइपोथेसिस विच इज जनरली अज्यूम्ड टू बी ट्रू, ठीक है, इनिशियली अज्यूम्ड टू बी ट्रू, द प्रायर बिलीफ क्लेम एंड जिसको हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, विच इज सपोज टू बी रिजेक्टेड, विच इज सपोज टू बी रिफ्यूटेड। तो एवरेज ड्राइंग टाइम अभी कितना है, तो एच नॉट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 75। नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वालिटी होगा, नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वालिटी होगा, ठीक है। इसको वी हैव टू चेक इट अगेंस्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज दैट कि वो एडिटिव डालने के बाद जो आपका मीन है वो 75 से कम हो रहा है, जो आपका मीन है वो 75 से कम हो रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक, दिस इज द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो आप ये कैसे चेक कर रहे हो, आप ये कैसे चेक कर रहे हो, आप n इज इक्वल टू 25 का आपने सैंपल लिया, मतलब 25 पेंट का आपने सैंपल लिया, ठीक है, उससे आपने एक x बार ऑब्टेन करोगे। x बार क्या है, सैंपल मीन, ये जो 25 पेंट हैं इनका ड्राइंग टाइम आप नोट करोगे, उनको ऐड करके 25 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द सैंपल मीन, यू विल गेट द सैंपल मीन, ठीक है। now the question is कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को कब रिजेक्ट करें। अगर ये 25 पेंट का हमने सैंपल लिया और सपोज x बार जो है 74 आ गया, सपोज x बार जो है 74 आ गया, तो क्या मैं अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा कि नहीं, एडिटिव डालने से जो है पेंट का एवरेज ड्राइंग टाइम जो है अच्छा सपोज ये x बार जो है, हाँ, तो क्या मैं अपने नल हाइपोथेसिस को इस केस में रिजेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ जो है एडिटिव डालने से जो है ड्राइंग टाइम जो है वो 75 से रिड्यूस होकर 74 हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वन सैंपल विच आई हैव ऑब्टेन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ वन सैंपल विच आई हैव ऑब्टेन्ड। बट दिस मे नॉट एक्चुअली बी द केस, व्हाई, बिकॉज सी ये तो एक सैंपल आपने 25 यूनिट का आपने एक सैंपल लिया, ठीक है, दिस सैंपल because of sampling variability, because of sampling variability, this may be an unrepresentative sample. We do not know, this may be an unrepresentative sample. What do we mean by this statement कि population तो बहुत large है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पेंट की है, सपोज n इज इक्वल टू 1000 पेंट हैं उस पॉपुलेशन में, ठीक है। आप कितने सैंपल्स इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप n की पावर n मतलब 1000 की पावर 25 सैंपल्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। उसमें से आपने एक सैंपल के बेसिस पे किया और उसका मीन सही में 75 से कम आ गया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इससे हमें प्रूव हो गया कि हाँ सही में जो है उसको डालने से वो जो है सही में उसको डालने से आपके एडिटिव को डालने से जो मीन जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है कि क्या पता जो हमने एक पर्टिकुलर सैंपल सिलेक्ट किया हो वो अनरिप्रेजेंटेटिव हो पूरी पॉपुलेशन का, ठीक है, बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी वी हैव चोजन अ सैंपल जिसका 74 आ गया, बट ऑल्दो ऐसा जो है गलत भी हो सकता है, ठीक है, ऑल्दो ऐसा गलत भी हो सकता है। तो व्हाट वी मीन टू से हियर इज कि अगर सपोज हमें इसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, अगर हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, देन आप x बार कुछ ऐसा सिलेक्ट करो जो कि सफिशिएंटली कम है 75 से। ये तो आपने 74 का जो कि 75 के करीब ही है, तो आपने एक सैंपल लिया जो कि 74 जिसका आ गया, ठीक है।
So only if I clear this, so only if the x bar value is substantially less than 75, only if the x bar value is substantially less than 75, H0 should be rejected. H0 should be rejected. Only if the x bar value substantially less than 75, H0 should be rejected. कि 74 तो चलो आ गया, वो तो 75 के करीब ही था, ठीक है। तो आप जो है सिर्फ एक सैंपल का 74 आने पे, जो कि 75 के करीब है, आप ये नहीं बोल सकते कि सिग्निफिकेंटली जो है उस एडिटिव को डालने के बाद एवरेज ड्राइंग टाइम 75 से कम हो सकता है ना। अब आप कैसे डिसाइड करो कि ये सब्सटैंशियली लेस, कैसे, हाउ डू यू क्वांटिफाई दिस सब्सटैंशियली लेस, ठीक है, सब्सटैंशियली और कंसिडरेबली। तो इस पे हम बाद में आते हैं ना। सपोज मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपका ना, अगर हमने सपोज डिसाइड किया दैट H0 should be rejected, H0 should be rejected only if x bar is less than equal to 70.8, ठीक है। ये फिगर कहाँ से है यदि आपको नहीं ध्यान रखना, मैं आपको जो है अभी बता रहा हूँ कि अगर हमने ये बोल दिया कि H0 को आप तभी रिजेक्ट करो जब आपके उस सैंपल का जो मीन है वो 70.8 या उससे कम आया। हमें क्या रिजेक्ट करना है? तो अगेन व्हाट इज आवर नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस इज दैट mu is equal to 75. Alternate hypothesis is that mu is not equal to 75, ठीक है। तो अगर आपने एक सैंपल लिया और उसका मीन जो है 70.8 से कम आया, तभी आप अपने नल को रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। Now let us draw this curve. इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बस रिवाइज करा देता हूँ, स्पेशली फॉर BBA स्टूडेंट। कि सपोज इफ x follows a normal distribution with mean mu and variance sigma square, x follows a normal distribution, हम इसको ऐसे लिखते हैं इसका कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन, उसका मीन म्यू है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। वी कन्वर्ट इट इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल which is denoted by z, and how do we obtain the value of standard normal? X minus mu by sigma, कि आपके जो भी नॉर्मल वेरिएबल है उसमें से उसका मीन सब्ट्रैक्ट करो और सिग्मा से डिवाइड करो, तो यू गेट द z वैल्यू, ठीक है। एंड देन दिस z वैल्यू इट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो क्योंकि सारे अगर नॉर्मल वेरिएबल है उसका मीन म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, आप किसी भी नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर दोगे, दिस z इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो उसका मीन 0 हो जाएगा और वेरिएंस 1 हो जाएगा। हम इसको क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि फिर इसका जो है टेबल से इजीली आप देख सकते हो, क्योंकि अब आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है, अब आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया ना। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक्चुअली आप x का डिस्ट्रीब्यूशन ना प्लॉट करके आप x बार का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करते हो। आप x का डिस्ट्रीब्यूशन ना प्लॉट करके आप x बार इज सैंपल मीन, ठीक है, जो कि x से निकला है बट वो सैंपल मीन है। तो अगर दिस यू विल हैव टू रिमेंबर ओनली कि अगर x फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन x बार फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय n हो जाता है। तो जब सैंपल मीन होता है तो उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ना होके सिग्मा स्क्वायर बाय n हो जाता है, ठीक है। तो अगर अब x बार के लिए अगर आपको z कैलकुलेट करना पड़ेगा तो z क्या हो जाएगा? x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट n हो जाएगा, x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट n हो जाएगा। अगर इसका डेरिवेशन इको स्टूडेंट ने तो किया है कि सैंपल मीन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन मीन वही रहता है, लेकिन उनका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय n हो जाता है।
ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए हम जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर वेरिएंस का स्क्वायर रूट है सिग्मा बाय रूट एन। तो आपको बस ये याद रखना पड़ेगा दैट दिस क्वेश्चन सिंस इट परटेन्स टू सैंपल्स, तो हमें ऐसा जेड कैलकुलेट करना है, हमें ऐसा जेड कैलकुलेट करना है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है ना, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब मैंने आपको ये बोल दिया आर्बिट्ररी। तो सपोज आपका जो एक्स वेरिएबल है, आपका जो एक्स वेरिएबल है, ठीक है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन 75, जो आपका एवरेज ड्राइंग टाइम है विद मीन 75। तो ये इस x का मीन है, ये इस x वेरिएबल का x इज योर एवरेज ड्राइंग टाइम। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर 70.8 से x बार की वैल्यू कम आती है, 70.8 से x बार की वैल्यू कम आती है, 70.8 से x बार की वैल्यू कम आती है, तो आप इसको x बार का डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो। ठीक है, बिकॉज x और x बार दोनों का मीन ही 75 है, बट इसमें क्योंकि आप यहाँ पर 70.8 परटेन्स टू सैंपल में, ठीक है, x इज फॉर द पॉपुलेशन, x बार इज फॉर द सैंपल। तो जब हम बोल रहे हैं 25 पेंट का सैंपल, तो कोई एक सैंपल नहीं होगा। ठीक है, उस पॉपुलेशन से बहुत सारे 25 पेंट के सैंपल बन सकते हैं, ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा नल तभी रिजेक्ट होगा जब एक्स बार क्या है, वैल्यू, जब स्मॉल लिख रहे हैं तो वो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स बार है। ठीक है, तो जब मेरा एक्स बार लेस देन इक्वल टू 70.8 है, यानी कि यहाँ उसकी कोई वैल्यू आ रही है, तब उस केस में जो है हम बोल रहे हैं कि नल शुड बी रिजेक्टेड। उस केस में हम बोल रहे हैं नल शुड बी रिजेक्टेड, नल शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, बट ये तो आपने बोल दिया अपने आप, एक आर्बिट्ररी वैल्यू सपोज हमने ली 70.8 ली, और उसमें हमने बोल दिया कि अगर उससे नीचे वैल्यू आ रही है देन नल शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, कि मीन जो है 75 नहीं है। बट इसमें भी तो ऐसा हो सकता है ना कि सपोज एक्स बार आपका 70 आ गया, एक्स बार आपका 70 आ गया, लेकिन फिर भी एक सैंपल का मीन 70 आ गया, लेकिन उस पॉपुलेशन में जो मीन ड्राइंग टाइम है वो अभी भी 75 है, वो अभी भी 75 है। ठीक है, ये एक ऐसा सैंपल निकल गया जो कि अनरिप्रेजेंटेटिव है, जो कि अनरिप्रेजेंटेटिव है, और मीन जो है पूरी पॉपुलेशन का अभी भी 75 है, यानी कि एडिटिव डालने से मीन जो है कम नहीं हुआ। तो इस केस में आप नल को रिजेक्ट करोगे, जब अगर 70 आएगा तो आप नल को रिजेक्ट करोगे, लेकिन आपका जो नल है वो एक्चुअली ट्रू है। कि अगर आपने एक्स बार 70 आया तो 70, क्योंकि हमने कट ऑफ रीजन क्या डिसाइड किया कि 70.8 से कम आना चाहिए, तो 70.8 से कम आया, 70.8 से कम है, तो आप नल को रिजेक्ट करोगे। बट एक्चुअली में अगर सपोज नल ट्रू होता है, देन यू विल कमिट एन एरर। ठीक है, तो अगर नल ट्रू है, एच नॉट इज ट्रू, रिसर्चर डज नॉट नो कि ट्रू है कि नहीं, बट आई एम सेइंग सपोज एच नॉट इज ट्रू बट x bar is equals to 70, so you reject the null, तो अगर आप null को रिजेक्ट करो, in this case you are committing a type 1 error, is this clear? now now what is the probability of this type 1 error? अब आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि x बार जो सैंपल मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर्ड है 75 पे, यानी कि x बार का मीन 75 है, so this curve is drawn based on the assumption that h naught is true. What is h naught? h naught is 75, कि मीन 75 है, तो ये कर्व उसी के बेसिस पे बना है कि मीन 75 ही है। ठीक है, डिफरेंट सैंपल मीन का मीन्स अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप उन सैंपल मीन्स का मीन निकालोगे तो वो 75 ही है। So this diagram is based on the assumption that h naught is true. This diagram is based on the assumption that your null hypothesis is true. तो अगर मैं 70.8 से नीचे कोई नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 70.8 से मैं नीचे नंबर कोई एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, so what is the probability of committing an error? I hope ये थोड़ा क्लियर है कि देखो, जब मैंने ये डायग्राम बनाया
जब मैंने ये डायग्राम बनाया तो मैंने इसका मीन क्या निकाला, मीन इसमें क्या दिखा रहा हूँ 75। तो ये यानी कि मैं एच नॉट को ट्रू मानकर दिखा रहा हूँ। और अगर मैं 70.8 से नीचे कोई एक वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ तो और अगर एच नॉट ट्रू है, एच नॉट सही में आपका मीन जो है सही में 75 है, तो आई एम कमिटिंग एन एरर। So what is the probability of this error? How do you calculate the probability of this error? So I am drawing this diagram under the assumption that null is true. I don't know whether it is true or not. I am saying under the assumption that null is true. ठीक है, and I have arbitrarily chosen a region कि 70.8 से नीचे होगा तो मैं अपने null को रिजेक्ट करूंगा, 70.8 से नीचे होगा तो मैं अपने null को रिजेक्ट करूंगा। ठीक है, दिस इज बट आई बट इन अगर नल ट्रू है, सही में 75 है, तो मैं एक एरर कमिट कर रहा हूँ 70.8 से नीचे अगर रिजेक्ट करने पे, क्योंकि नल तो ट्रू ही है ना। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एरर? तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। तो वो इजी है, आपने इसको जो है z में कन्वर्ट करना है, आपने इसको z में कन्वर्ट करना है। तो 75 के लिए z की वैल्यू क्या होगी? 75 के लिए अगर आपको z की वैल्यू निकालनी पड़े तो व्हेन x बार इज 75, z इज इक्वल टू 75 minus 75 by sigma by root n. तो आपका sigma क्या है 25 and root n is your, oh sorry, your sigma is 9, your sigma is 9 and root n is 25, so it is root 25, so it is 0. तो इसके लिए मीन के लिए z is 0. Now let us calculate 70.8 के लिए, 70.8 के लिए आपका z क्या है? 70.8 के लिए z कैसे निकलेगा? So when x bar is 70.8, so z is equals to 70.8 minus 75 upon again 9 by root 25, 9 by root 25, so 9 by 5. ठीक है, so you get z is equals to minus, so z is equals to minus 4.2 by 1.8 by 1.8. ठीक है, तो z comes out to be minus 4.2 divided by 1.8, so it is minus 2.33 something, it is minus 2.33. तो यानी कि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग 70 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू है वो है माइनस 2.33। ठीक है, अब आपने z टेबल में, तो जो z टेबल मैं आपको सर्कुलेट करूंगा उसमें हमेशा 0 से वैल्यू दे रखी होती है, 0 से वैल्यू दे रखी होती है। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी, तो 2.33 पे अगर z 2.33 है तो यहाँ 2.3 देखा, इधर 2.3 ये हुआ, यहाँ 2.3 देखा, यहाँ 2.03 देखा, तो इसमें हमें क्या मिला? दैट the probability is 0.4901. The probability is 0.4901. So this probability is 0.4901. So what is this probability? क्योंकि ये दोनों रीजन हाफ होते हैं, तो this probability is 0.5 minus 0.4901. ठीक है, 0.5 minus 0.4901. So this comes out to be 0.099. ठीक है, तो which is approximately 0.01, which is approximately 0.01. ठीक है, so what have we, so this is your nothing but your 1%. ठीक है, मतलब less than 1% probability है, less than 1% probability है। So what we can say here is for the specified test procedure, अगर हम x बार को 70.8 चूज करते हैं, मतलब हमने क्रिटिकल रीजन 70.8 चूज किया। ठीक है, हमने क्रिटिकल रीजन जो है 70.8 से कम वाला चूज किया। अब उस केस में सपोज हमने 70 पिक किया, हमने उस केस में सपोज हमारे सैंपल का मीन 70 आया, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस।
ठीक है। नाउ यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, बट यू विल हैव टू स्पेसिफाई कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर सही में जो है 75 होता और अगर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ओनली बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0.01 आई, तो ओनली 1% ऑफ ऑल only 1% of all experiments carried out will result in H naught being rejected, will result in H naught being rejected when it is actually true, when it is actually true, when it is actually true, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। हमने अपना नल हाइपोथेसिस चूज किया दैट म्यू इज इक्वल टू 75, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस चूज किया दैट म्यू इज लेस दैन 75, ठीक है। अब हमने अपने आप अभी एक रिजेक्शन रीजन जो है वो कर दिया कि अगर मैंने सैंपल्स लिए और सैंपल मीन जो है मेरा 70.8 से कम आ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ सही में जो है मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ अपने नल को ऑल्टरनेट के फेवर में, ठीक है। मैंने 74 क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि 74 तो बहुत पास ही है 75 के, ठीक है। तो उससे आपको जब कंसिडरेबली लो फिगर है तभी हम कह सकते हैं कि हाँ सही में मीन जो है वो रिड्यूस हुआ है, क्योंकि बहुत सारे सैंपल्स आपके पास हो सकते हैं ना, आपने तो कोई एक सैंपल पिक किया, ठीक है। तो कंसिडरेबली लो अगर उस सैंपल का मीन आ रहा है तब आप फिर भी कह सकते हो कि हाँ जो है मैं अपना नल जो है वो रिजेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमेशा एरर की पॉसिबिलिटी तो रहेगी ना कि अगर सपोज एक्स बार 70 आ गया, तो आपने नल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि एरर हो सकता है उस केस में भी कि एक्स बार एक सैंपल का मीन एक्स बार जो है 70 आ गया, लेकिन जो पॉपुलेशन का मीन है वो अभी भी 75 ही है, जो पॉपुलेशन का मीन है वो अभी भी 75 ही है। तो अगर मैं एक्स बार इज इक्वल टू 70 को रिजेक्ट कर रहा हूँ, so I'll have to say कि I am rejecting it, I am rejected under the condition that I am rejecting it under the condition that the probability of the error is 1%, ठीक है, कि मैं उसको रिजेक्ट तो कर रहा हूँ लेकिन क्या पता जो है नल हाइपोथेसिस जो है सही में ट्रू था। तो I am rejecting the null based on this sample information, क्योंकि मैंने अपना critical region ऐसे select किया था, but still there is possibility of an error, ठीक है, still there is possibility of an error कि क्या पता मैं सही नल को मैंने रिजेक्ट कर दिया और उस एरर के होने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो आई एम रिजेक्टिंग इट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो कि 1% ऐसा हो सकता है कि जो मेरा सैंपल मीन आया और उस बेसिस पे मैंने नल को रिजेक्ट कर दिया, वो एक गलत डिसीजन था, क्योंकि अगर मीन 75 ही है, अगर मीन 75 ही है तो 70 से नीचे आने की पॉसिबिलिटी, कोई नंबर 70 से नीचे अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 0.01 है, उसके होने की पॉसिबिलिटी क्या है, बिकॉज दिस एरिया यू हैव टू रिमेम्बर कि नल आपने इसमें जो है इसी बेसिस पे आपने बनाया कि मीन उसका अभी भी 75 है, दैट नल इज ट्रू। दिस डायग्राम इज ऑन द बेसिस दैट एच नॉट इज ट्रू, तो अगर आपने जो है इस बेसिस पे अगर आपने सिलेक्ट किया कि अगर आप 70 से नीचे सिलेक्ट करो तो 70 से कोई नंबर नीचे सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1%, सॉरी दिस इज 70.8 से नीचे नंबर सिलेक्ट करने की क्या पॉसिबिलिटी है, 1%। तो 1% एक ऐसा चांस है कि मैं जो है अपनी ट्रू नल को रिजेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ना अगर जो है सपोज मैंने क्रिटिकल रीजन ये सिलेक्ट किया होता, अगर मैंने क्रिटिकल रीजन सिलेक्ट किया होता एक्स बार लेस देन इक्वल टू 72, कि 72 से नीचे
अगर कोई भी वैल्यू आ रही है तो मैं अपने नल को रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो अगेन उस केस में भी आप एरर की पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट वही है। Null hypothesis is that mean is equals to 75. Alternate hypothesis is that mean is less than 75. बट अब हमने अपना रिजेक्शन रीजन जो है दूसरा बना दिया that x bar less than equal to 72. यानी कि आपने रिजेक्शन रीजन बढ़ा दिया। तो पहले तो आप ये कह रहे थे कि 70.8 से नीचे अगर सैंपल की वैल्यू आएगी तो आप अपने नल को रिजेक्ट करोगे। अब आप कह रहे हो कि 72 से नीचे अगर वैल्यू आएगी तो आप अपने नल को रिजेक्ट करोगे। ठीक है, तो अगर ये 75 है, दिस इज अंडर द assumption that null is true, और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप 72 से नीचे, तो आपने अपना रिजेक्शन रीजन जो है इंक्रीज कर दिया। आपने अपना रिजेक्शन रीजन जो है इंक्रीज कर दिया ना। इसकी अगर आप पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी सेम उसी तरीके से निकालोगे तो वो आएगी 0.05। तो उसकी वैल्यू आएगी 0.05। तो अगर आपने जो है अपना क्रिटिकल रीजन एक्सपैंड कर दिया, ठीक है, क्रिटिकल रीजन एक्सपैंड कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर हैज इंक्रीज इन दिस केस। probability of type 1 error has increased in this case। ठीक है, तो नाउ अब अगर आपका सपोज किसी सैंपल का x बार जो है 71 आता है, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये क्रिटिकल रीजन में आ रहा है, रिजेक्शन क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन का मतलब सेम ही है, 71 इधर आ रहा है, क्योंकि क्रिटिकल रीजन में आ रहा है, वी विल रिजेक्ट आवर नल, हम अपने नल को रिजेक्ट करेंगे। लेकिन नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि 5% हो सकता है 100 सैंपल में ऐसा कि हमने गलत नल को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप x बार इज इक्वल टू 71 से आप ये तो कह रहे हो कि मैं अपने नल को रिजेक्ट कर रहा हूँ, बट आपने उसके साथ एक पॉसिबिलिटी अरेंज करनी है कि 5% ये चांस है कि मैं गलत हो सकता हूँ, 95% ये चांस है कि मैं गलत नहीं हूँ, 95% ये चांस है कि मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, आई होप दिस इज समवॉट क्लियर। ये बहुत कम बुक्स में समझाया जाएगा। ठीक है, तो जनरली आपको जो है सिंपल सा डायग्राम बना के जो है रिजेक्शन रीजन समझाते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस हैज बीन एक्सप्लेन इन डेवोस, तो जो इको स्टूडेंट्स है दे कैन रेफर इट टू डेवोस। नाउ अब उल्टा काम करेंगे हम। तो अब उल्टा क्या काम होगा कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर दिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या होगा, तो यू गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर विच इज अल्फा, you'll have to find the critical region. Given the probability of type 1 error alpha, you'll have to find the critical region। कि अब आपको टाइप 1 एरर की पॉसिबिलिटी दे रखी होगी और आपको क्रिटिकल रीजन जो है फाइंड करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो एरर्स हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, दोनों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्योंकि टाइप 1 एरर ज़्यादा सीरियस माना गया, इसलिए हम अल्फा को कंट्रोल करते हैं। तो उसकी जनरली वैल्यूज क्या होती है, 5%, 1% एंड 10%। तो ये वैल्यूज आपको, इन वैल्यूज के लिए आपको क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन को निकालना होता है। ठीक है, अगर एक बार आप क्रिटिकल रीजन निकाल लेते हो, उसके बाद जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, Z, T, F या chi स्क्वायर, अगर इनमें से कोई टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, इफ द टेस्ट statistic falls in the critical region, if the test statistic falls in the critical region or the rejection region, you reject the null, otherwise you do not reject the null, ठीक है, otherwise you do not reject the null। So now let us discuss the various cases जिसमें हमें critical region निकालना पड़ता है, तो पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, critical values of standard normal
डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्रिटिकल वैल्यूज क्या डिटरमाइन करती है? रिजेक्शन रीजन। इसको क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन भी बोलते हैं। क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो लेट अस नाउ, आई हैव टोल्ड यू कि हमारे पास जो है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। हमारा नल हाइपोथेसिस तो ऐसा ही रहेगा दैट सपोज एनी पैरामीटर, ये पैरामीटर कुड बी म्यू और सिग्मा स्क्वायर, इसकी वैल्यू थीटा नॉट है। alternate hypothesis could be that theta is greater than theta naught, theta is greater than theta naught. So this is called as a right-tailed test. This is called as a right-tailed test. Or the alternate hypothesis could be that theta is less than theta naught. This is called as a left-tailed test. This is called as a left-tailed test. And उसके बाद that theta is not equal to theta naught. इसमें direction of inequality is not important, बस unequal है कि जो हम बोल रहे हैं थीटा। so for example, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे mu is equals to 200, so mu is your theta and 200 is your theta naught। ठीक है, तो ये उसका एक एग्जांपल है, मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। तो थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट इज योर टू टेल्ड टेस्ट, इज योर टू टेल्ड टेस्ट, is your two-tailed test. ठीक है, now let us find out the critical values at 5% level of significance for all of these tests. Let us find the critical values for 5% level of significance. So 5% level of significance. ठीक है, let us first begin with the right-tailed test. Let us first begin with the right-tailed test. So right-tailed test के लिए critical value हमें निकालनी है। It is simple only. Right-tailed test के लिए critical value. So your null hypothesis is that population parameter is equals to a constant which is theta naught, and the alternate hypothesis is that the population parameter is greater than theta naught. The population parameter is greater than theta naught. Population parameter is greater than theta naught. ठीक है, नाउ यू हैव टू रिमेम्बर कि ये तो नॉर्मल, ये अब आपको हर क्वेश्चन जो है वो क्योंकि टेबल से सॉल्व करना है तो आप उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल में अपने क्वेश्चन को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई एम सेइंग सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, let us say it is the distribution of theta, so this is theta naught, this is theta naught। ठीक है, जब आप इसको z में कन्वर्ट कर दोगे तो जो बीच वाली वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, जो बीच वाली वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। अब हम कह रहे हैं दैट देयर इज अ थीटा, अब हम कह रहे हैं कि थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट, थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट। तो क्या होगा इन दिस केस? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। So I am saying that mu is equals to 200, ठीक है, and mu is greater than 200, mu is equals to 200 and mu greater than 200। तो मैं वो कौन सी x बार की वैल्यू, तो mu, ये तो मीन mu है, mu is सैंपल, mu is पॉपुलेशन का मीन। ठीक है, तो हम वो कह रहे हैं कि सपोज आप जो है एडिटिव वाला क्वेश्चन ही ले लो कि एडिटिव डालने के बाद मीन जो है वो 200 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अगर आप सैंपल वैल्यू क्या लो, सैंपल वैल्यू आप क्या लो जिसमें आप बोल सकते हो कि हाँ सही में जो है एडिटिव डालने के बाद जो है मीन इंक्रीज हो गया। अब आप 201 तो नहीं बोलोगे क्योंकि एक सैंपल का 201 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, आपने 210 जैसे सपोज ले लिया, वो तो आपने आर्बिट्ररी ले लिया। अब हम कह रहे हैं कि हम एक टाइप एंड एरर की प्रोबेबिलिटी फिक्स करके हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि 210 लेना है कि 218 लेना है कि 220 लेना है। ठीक है, हम ये ऐसे फिक्स कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली जो, तो आपने एक क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, आपने एक क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, उसको मैं डिनोट करूंगा बाय z अल्फा। दिस क्रिटिकल वैल्यू उसको मैं डिनोट करूंगा बाय z अल्फा। ठीक है,
कि जो मेरा सैंपल मीन है उसके लिए जो मेरा z है वो z अल्फा से कम आ रहा है, तो आई वोंट रिजेक्ट द नल, तो डू नॉट रिजेक्ट द नल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है मेरा सैंपल मीन तो x बार होगा, उसको भी आप z में कन्वर्ट करोगे तो वो ये z है। मेरा सैंपल मीन जो है ग्रेटर देन z अल्फा आ रहा है, तो आई विल रिजेक्ट द नल। बट दोनों केस में मुझे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो मुझे वो z अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो आई हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ z अल्फा, जो कि यहाँ पर जो होगा x के टर्म्स में होगा और यहाँ पर z के टर्म्स में होगा, कि जिसके नीचे तो मैं अपने नल को रिजेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन जिसके ऊपर जो है मैं अपने नल को रिजेक्ट करूंगा। सो इन दिस केस द रिजेक्शन रीजन विल बी ऑन द राइट साइड। तो अगर आपका राइट टेल टेस्ट है तो रिजेक्शन रीजन जो होगा वो राइट साइड पे होगा। अगर आपका जो है राइट टेल टेस्ट है तो रिजेक्शन रीजन जो है वो राइट साइड पे होगा। ठीक है, कि भाई सपोज दिस इज एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन, द नल हाइपोथेसिस इज कि उसका मीन 200 है। ठीक है, अब हमें अगर इसको रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट किसके बेसिस पे करोगे? सैंपल के बेसिस पे। तो वो कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके बेसिस पे आप उसको रिजेक्ट करोगे? तो आप आर्बिट्ररी नहीं चूज कर सकते। हम क्या डिसाइड करते हैं कि हम वो वैल्यू चूज करेंगे जिसके लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, टाइप 1 एरर है। Probability of type 1 error is 5%. Probability of type 1 error is 5%. So what is that value? जिसमें आप जो है इसको रिजेक्ट करोगे? What is that value? अगर उसके ऊपर आपका सैंपल मीन है तो आप इसको रिजेक्ट करोगे। ठीक है, so let us derive this value for 5% level of significance. So for 5% level of significance मतलब अल्फा is 0.05, अल्फा is 0.05। तो अगर राइट टेल टेस्ट है, %, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज 0.05। तो अगर राइट टेल टेस्ट है तो रिजेक्शन रीजन इज ओनली ऑन द राइट टेल। रिजेक्शन रीजन तो z के टर्म्स में ये जीरो होगा। ठीक है, z के टर्म्स में ये जीरो होगा, ये होगा z अल्फा जो कि क्रिटिकल वैल्यू होगी, और ये वाली वैल्यू जो है ये अल्फा है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 1 एरर। व्हाई इट इज एन एरर? क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी वही है, बिकॉज दिस इज ड्रॉन अंडर द असम्पशन दैट नल इज ट्रू। लेकिन अगर आप इसमें से कोई वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अगर इसमें से कोई वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो तो एरर होने के ये चांस है कि नल ट्रू था, लेकिन फिर भी आपने इसमें से कोई वैल्यू सिलेक्ट कर ली और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 5% पॉसिबिलिटी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सिंपल है। अब क्योंकि ये 0.05 है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, दोनों जो है इक्वली होते हैं, तो ये टोटल एरिया इज 0.5। तो ये एरिया कितना हो गया? 0.5 माइनस 0.05। तो दिस एरिया इज 0.5 माइनस 0.05, which comes out to be 0.45। तो यानी कि अब आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई है और आपको z अल्फा निकालना है। तो हमने क्या करना है, टेबल में ये चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी अगर 0.45 है तो उस केस में जो है आपका नियरेस्ट z वैल्यू क्या होगी? 0.45। सपोज अगर मैंने ये ले ली तो नियरेस्ट z वैल्यू मैं ले सकता हूँ 1.65। आपने कॉलम में चेक किया 1.6, रो में चेक किया 0.05, तो ये कितना आ गया? 1. So this comes out to be 1.65। So in this case your z alpha is 1.65। तो अगर आपका राइट टेल टेस्ट है, तो अगर आपकी दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू, तो क्रिटिकल वैल्यू के राइट में इज योर रिजेक्शन रीजन। So if your z is greater than z alpha, you reject the null at 5% level of significance। ठीक है, if z is less than z alpha,
we do not reject the null. If z is less than z alpha, we do not reject the null at 5% level of significance. We do not reject the null at 5% level of significance. ठीक है, कि ये रिजेक्शन अगर आपने सैंपल लिया, उसके मीन का आपने z कैलकुलेट किया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना बेटा, जो भी वैल्यू आएगी, सपोज x बार है, वो तो जो है नॉर्मल है, आपने उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में z में कैलकुलेट करना है। तो z की वैल्यू अगर 1.65 से ज़्यादा आ रही है तो आप अपने नल को रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज 5%, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज 5%। ठीक है, एंड आप जो है डू नॉट रिजेक्ट द नल कर रहे हो। अगर z लेस देन z अल्फा है तो यू आर नॉट रिजेक्टिंग द नल। तो बेसिकली क्रिटिकल वैल्यू से एक आपको रिजेक्शन रीजन मिल गया, एंड जो ये बाकी बच गया, इसमें से कोई भी वैल्यू अगर आई तो वो एक्सेप्टेंस रीजन होता है, तो वो एक्सेप्टेंस रीजन है आपका। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द लेफ्ट टेल टेस्ट। तो लेफ्ट टेल टेस्ट क्या है? लेफ्ट टेल टेस्ट किस तरीके का होगा? दैट सपोज योर नल तो यही रहेगा, दैट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, ऑल्टरनेटिव इज दैट theta is less than theta naught, alternative is theta is less than theta naught. For example, null hypothesis is mu is 200 and the alternate hypothesis is that mu is less than 200. Alternate hypothesis is that mu is less than 200. ठीक है, so if this is the distribution of x bar, ये आपका जो है मीन है, तो अगर this mean mu is equals to 200, this mean mu is equals to 200, तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे हम अपना नल रिजेक्ट करें? कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे हम अपना नल जो है वो रिजेक्ट करेंगे? तो 200 से कौन सी कम? 199 नहीं ले सकते, 198 भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे हम 200 से हम मानेंगे कि हमारा नल रिजेक्ट हो रहा है और ऑल्टरनेट सही है। ठीक है, तो वो वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप एंड एरर फिक्स कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप एंड एरर इन दिस केस इज 0.05. Probability of type and error in this case is 0.05 because we are saying 5% level of significance. ठीक है, we are saying 5% level of significance. तो z के लिए क्या हो जाएगा? z इधर 0 हो जाएगा, so you have to find out the value of z alpha. Again in this case you'll have to find out what is the value of z alpha. अब आपको पता होगा कि अगर ये 0 है तो ये z alpha की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये अगेन ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या है? ये प्रोबेबिलिटी 0.45 है, ये वाली प्रोबेबिलिटी है 0.45, लेकिन इस केस में z की जो वैल्यू आएगी, इस केस में जो z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 1.65। इस केस में z की जो वैल्यू आएगी माइनस 1.65। तो अगर आपके क्वेश्चन में जो z है वो माइनस 1.65 से छोटा है, आपके क्वेश्चन में जो z है वो माइनस 1.65 से जो है माइनस 1.65 से छोटा है, तो आप नल को रिजेक्ट करोगे। तो इफ योर so this is the critical value and 1z you will calculate 1z if z calculated if z calculated is less than if z calculated is less than minus 1.65, कि अगर इधर आ रही है z की वैल्यू जो कि रिजेक्शन रीजन है, then null is rejected, then null is rejected, then null is rejected, then null is rejected. I hope this is clear. ठीक है, तो उस केस में क्या था? राइट टेल टेस्ट के केस में क्या था कि अगर so this value is 1.65, तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन 1.65 आ रही थी तो नल इज रिजेक्टेड था, क्योंकि उसी केस में वो रिजेक्शन रीजन में आ रहा था विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बीइंग 5%। लेकिन इस केस में क्या है, क्योंकि आपका जो है वी हैव कंस्ट्रक्टेड लेफ्ट टेल टेस्ट में ये माइनस 1.65 है, यानी कि कोई वैल्यू इससे छोटी है, क्योंकि वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना,
तो अगर कोई वैल्यू से छोटी है, इफ z कैलकुलेटेड इज लेस दैन -1.65, in that case the null is rejected. In that case the null is rejected. ठीक है. Now let us discuss the commonly used alternative, which is two-tailed test वाला. Two-tailed test. So two-tailed test is of the form that null is supposed to 200, null is supposed 200, and the alternate hypothesis is that mean is not equal to 200. Mean is not equal to 200. मीन इज नॉट इक्वल टू 200. ठीक है. अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब टू टेल्ड टेस्ट है, तो दिस मीन्स दैट द रिजेक्शन रीजन is on both sides of the tail. This means that the rejection region is on both sides of the tail. ठीक है. तो अगर अल्फा 5% है, तो आपका जो रिजेक्शन रीजन है, वो इधर भी है और वो इधर भी है. ठीक है. why is it so? Because क्योंकि हम कह रहे हैं कि म्यू नॉट इक्वल टू 200 है. तो आप ये नहीं कह सकते कि अब आप 199 पे रिजेक्ट करोगे कि 201 पे रिजेक्ट करोगे. ठीक है. बिकॉज सिर्फ इसमें नॉट इक्वल टू है. तो आपका रिजेक्शन रीजन विल बी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेल. इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम अल्फा बाय 2 मान लेते हैं और इसको भी हम अल्फा बाय 2 मान लेते हैं. तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितनी होनी चाहिए? 5% होनी चाहिए. तो ये अल्फा बाय 2 हो गई और ये अल्फा बाय 2 हो गई. तो आप इसके लिए जो है z को डिटरमाइन करते हो, z क्रिटिकल को. ठीक है. इसके लिए आप z क्रिटिकल को डिटरमाइन करते हो. तो इस केस में क्या हो गया? तो यू हैव 0.05 बाय 2. तो यू हैव 0.05 बाय 2. तो दिस इज 0.025. ठीक है. सिमिलरली ये भी हो जाएगा 0.025. ये भी हो जाएगा 0.025. ठीक है. तो अब आपने, तो ये कितनी हो गई? 0.5 माइनस 0.025. तो दिस इज 0.475. दिस इज 0.4750. ठीक है. तो 0.4750 के लिए आपने चेक किया कि z की वैल्यू क्या है. तो 0.4750 यहाँ आया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई. तो 0.4750, z की वैल्यू क्या है? 1.96. z की वैल्यू क्या है? आप टेबल से चेक कर सकते हैं. 1.96 आएगी. तो दिस वैल्यू इज 1.96 एंड दिस वैल्यू इज -1.96. ठीक है. तो योर रिजेक्शन रीजन वुड बी कि अगर आपकी z की वैल्यू, अब देखो इस केस में z, आपके जो सैंपल के लिए z है वो कहीं पर भी आ सकता है. पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है. तो अगर मैं आपकी बोलूं कि उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इन दिस केस व्हाट वी से दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z calculated is less than 1.96, then we do not reject the null. Then we don't reject the null. Why? Because mod z calculated less than 1.96 का क्या मीनिंग है? That -1.96 is less than z calculated is less than 1.96. कि अगर z की जो आपने कैलकुलेट की है वो इसमें से कहीं पर वैल्यू आ रही है तो आप नल को रिजेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि रिजेक्शन रीजन ये वाले हैं. ठीक है. तो टू टेल टेस्ट में हम हमेशा मॉड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपने z की. ठीक है. और अगर मॉड वैल्यू 1.96 है तो वी डोंट रिजेक्ट द नल. एंड इफ मॉड ऑफ z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन 1.96, if mod of z calculated is greater than 1.96, then we reject the null. ठीक है. Is this clear? Now अगर
ऐसे भी बहुत बच्चे होंगे जिनको अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अगर कुछ क्लियर नहीं है तो जो है आपने ये वैल्यूज आपको जरूर याद रखनी है कि इनको हम क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। क्रिटिकल वैल्यू, ये क्रिटिकल वैल्यू टेबल के लिए एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस। डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब अल्फा, अल्फा की वैल्यू। सो अल्फा मोस्ट कॉमनली यूज इज 5%, देन कहीं कहीं 1% भी यूज होता है, कहीं कहीं 10% भी यूज होता है, ठीक है। टू टेल्ड टेस्ट, टू टेल्ड टेस्ट के लिए, ठीक है, 3 तरीके के टेस्ट हो सकते हैं। टू टेल्ड, देन राइट टेल्ड एंड लेफ्ट टेल्ड, राइट टेल्ड एंड लेफ्ट टेल्ड, ठीक है। तो टू टेल टेस्ट पे 5% पे अल्फा की 5% पे आपकी ये वैल्यूज किसकी हैं, ये जेड क्रिटिकल वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज किसकी मैं लिखूंगा, क्रिटिकल जेड वैल्यूज की, क्रिटिकल जेड वैल्यूज, ठीक है। तो टू टेल टेस्ट में 5% पे क्या वैल्यू आ रही है, 1.96, ठीक है। राइट टेल के लिए क्या आ रही है, 1.65, लेफ्ट टेल के लिए -1.65। तो आपने ये वैल्यूज याद रखनी है, बार बार आपने वहां पर कैलकुलेट नहीं करना है। 1.96, 1.65 -1.65, ठीक है। अब आप सिमिलरली 1% के लिए चेक कर सकते हो, तो ये आएगा 2.58, ये आएगा 2.33 और ये आएगा -2.33, ये आएगा -2.33। सिमिलरली आप 10% पे चेक कर सकते हो, तो ये आएगा 1.65, ये आएगा 1.28 और ये आएगा -1.28। तो इन वैल्यूज से जो है आपको यू विल गेट द रिजेक्शन रीजन, यू विल गेट द रिजेक्शन रीजन। तो अगर आपने आपके सैंपल का जो स्टैटिस्टिक है वो रिजेक्शन रीजन में फॉल करता है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे एट दैट मच लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अदरवाइज यू डू नॉट रिजेक्ट द नल। हम कभी भी ये नहीं बोलते दैट वी एक्सेप्ट द नल, हम ये बोलते हैं कि वी डू नॉट रिजेक्ट द नल at this much level of significance. So these values help you determine the rejection region. These values help you determine the rejection region. I hope this is clear. These values help you determine the rejection region. Now let us come to the actual questions. The questions hypothesis testing में अब किस तरीके से आएंगे? Questions hypothesis testing में how what kind of questions you will get. So let us discuss the first question. So these are tests of the type. These are tests of the type. Test for a population mean, जो हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं, टेस्ट फॉर अ पॉपुलेशन मीन की हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है बहुत तरीके का हो सकता है ना, कि आप चेक कर रहे हो कि मीन की वैल्यू 200 है, आप चेक कर रहे हो कि सॉरी वेरिएंस जो है वो 200 है। देन देर आर ऑल्सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ द टाइप कि आप दो सैंपल की मीन्स को कंपेयर कर रहे हो, कि दो पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हो कि उनका मीन सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला टाइप डिस्कस कर रहे हैं, that we are testing for a population mean, we are testing for a population mean, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, इसके सिंपल है, थ्योरी इज लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन आई विश एंड आई होप कि सबको समझ में आ गई। नहीं आए तो विल ऑब्वियसली हैव अ डाउट क्लास, बट टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन सॉल्व करना तो हर कोई कर लेगा, बट थ्योरी समझना इस केस में जो है थोड़ा सा
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार समझ में आ गया देन आपको जो बहुत ज़्यादा उससे जो सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ मुझे सही में हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ a manufacturer of sprinkler systems a manufacturer of sprinkler systems used for fire protection. A manufacturer of sprinkler systems used for fire protection in office buildings claims that the true average system activation temperature is 130 degree Fahrenheit. Is 130 degree Fahrenheit. I'll explain this question. ठीक है, is 130 degree Fahrenheit. Then a sample of n is equals to 9 systems. A sample of n is equals to 9 systems when tested. A sample of n is equals to 9 systems when tested yields a sample average activation temperature of 131.08 degree Fahrenheit. ठीक है, if the distribution of activation times is normal with standard deviation 1.5 degree Fahrenheit does the data contradict the manufacturer's claim at 1% level of significance? Does the data contradict the manufacturer's claim at 1% level of significance? So the question is कि there is a manufacturer of sprinkler system, so you can say जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जैसे आग से बचाने के लिए you have sprinkler system used for fire protection in office buildings claim that the true average system activation temperature is 130 degree Fahrenheit. कि टेम्परेचर जैसे ही 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचता है जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब हमने 9 सिस्टम्स का एक सैंपल लिया और जब हमने उसको टेस्ट किया तो उससे जो एवरेज एक्टिवेशन टेम्परेचर आया वो 131.08 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। तो अब आपको बताना है कि क्या ये डेटा मैन्युफैक्चरर के क्लेम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने तो कहा था कि 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हुआ, लेकिन हमने तो एक सैंपल लिया जिसमें 131.08 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अगर आप एक 9th क्लास के बच्चे से पूछते कहेगा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ये 131 जो है 130 के इक्वल नहीं है। बट आप जो है स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स, इकोनोमेट्रिक्स के स्टूडेंट्स हो, तो यू नो कि ये एक सैंपल है, ठीक है। दिस सैंपल मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो हमें ये चेक करना है कि हमें 1% एरर, मतलब अगर 1% का एरर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो ये क्लेम ट्रू है कि नहीं। अगर ये 1% का हम एरर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये क्लेम ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो
तो द डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन मीन के अराउंड सेंटर्ड है, तो मीन कितना है, तो इन दिस केस योर मीन इज, in this case the mean is 130, in this case the mean is 130, ठीक है, in this case the mean is 130, और हमें किसके लिए निकालना है, तो what is the null and the alternate hypothesis in this case, null hypothesis is mean is 130, ठीक है। अब alternate क्या है कि मीन जो है वो 130 नहीं है। अब इसमें ये नहीं है कि कुछ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि क्या एवरेज जो एक्टिवेशन टाइम है क्या वो 130 से कम है ज़्यादा है, वो उससे मतलब नहीं है, 130 के बराबर है कि नहीं। तो इसमें आपका ये टू टेल्ड टेस्ट है। तो क्वेश्चन से आपको ये पता लगना है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा कि कुछ अप्लाई करके इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, तो ये टू टेल्ड टेस्ट होगा, तो ये टू टेल्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ये क्लियर है, टू टेल्ड टेस्ट। अब आपको क्या करना है कि आपके सैंपल के लिए जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 131.08, तो वो इधर कहीं आई 131.08। तो आपने क्या करना है, इसके लिए z निकालना है, ठीक है। तो दिस इज 130 एंड दिस इज 131.08, ये x बार की वैल्यूज हैं। z की वैल्यू कैसे आएगी, तो इसके लिए z की वैल्यू 0, इस 131.08 के लिए z की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो जो z की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज z कैलकुलेटेड, इसको हमेशा ऐसे ही लिखना है, z कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, तो क्या होता है, x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन, x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन, ठीक है। तो x बार क्या है आपका 131.08 माइनस म्यू कितना है 130, ठीक है। सिग्मा आपको दे रखा है 1.5 एंड n आपको दे रखा है √9, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू गेट 1.08 by 0.5, so this comes out to be 2.16, तो ये आपने z कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो टू टेल्ड टेस्ट है, तो मैंने कहा था टू टेल टेस्ट में आपको क्या करना है, मॉड वैल्यू आप कर लेते हो, तो इस केस में मॉड ऑफ z कैलकुलेटेड भी कितना आ गया आपका, मॉड ऑफ z कैलकुलेटेड भी आ गया 2.16। नाउ z क्रिटिकल, तो आपको ये टू टेल टेस्ट है, तो इसमें आपको जो है z 1% पे चेक करना है, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, तो 1% पे मतलब कैसे वैल्यूज आई होंगी, तो हमने ये पहले 1% 0.01/2 किया होगा, 0.01/2 किया होगा, ठीक है। इसलिए ये जो z की वैल्यूज हैं इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, z अल्फा बाई 2 एंड माइनस z अल्फा बाई 2 से, ठीक है। तो z क्रिटिकल विच इज z अल्फा बाई 2, क्योंकि टू टेल्ड टेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, विच इज इक्वल टू z अल्फा बाई 2, अल्फा इज 0.01 बोला है, तो 0.01/2, 0.01/2, which is equal to 0.005, ठीक है। तो मैंने आपको कैसे कैलकुलेट करोगे अगर आपको नहीं याद है, तो यानी कि दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.005। अब आप टेबल में चेक करोगे, तो दिस प्रोबेबिलिटी वुड बी 0.5 माइनस 0.005, so this probability would be 0.495, this probability is 0.495, तो 0.495 का आपने टेबल में चेक किया, तो 0.4950 कहीं इधर आया, 0.4950 is something this, so it is actually 2.58 पे हो रहा है, 2.58 पे। तो जो वैल्यू मैंने आपको लिखवा दिया, आपको हर बार डिराइव नहीं करना, आप याद भी कर सकते हो। तो इन दिस केस z क्रिटिकल वैल्यूज आर 2.58, ठीक है। तो यानी कि z क्रिटिकल वैल्यू इज 2.58, तो ये आपका जो है ये माइनस, क्योंकि टू टेल टेस्ट है,
तो इधर भी है, इधर भी है, ये आपका रिजेक्शन रीजन है। ये दोनों मिला के आपके रिजेक्शन रीजन है, ये दोनों मिला के आपके रिजेक्शन रीजन है। ठीक है, आपकी जो z की वैल्यू आई, आपकी जो z की वैल्यू आई वो 2.16 आई, जो कि इधर कहीं आई, 2.16 इधर है। ठीक है, तो इन दिस केस मॉड ऑफ z कैलकुलेटेड इज लेस देन 2.58, तो आपकी रिजेक्शन रीजन में नहीं आ रही z की वैल्यू। ठीक है, तो h नॉट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, तो हम नल को रिजेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जो आपकी z की वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में फॉल नहीं कर रही है। तो h नॉट कैन नॉट बी रिजेक्टेड at 1% level of significance. H naught cannot be rejected at 1% level of significance. ठीक है, क्योंकि आपकी जो z की वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में नहीं लाई कर रही, तो आप z को रिजेक्ट नहीं कर रहे। इसको आपने फिर इंग्लिश में भी लिखना है कि व्हाट इज योर z, व्हाट इज योर h नॉट। so we will say that the data does not give the data does not give strong support the data does not give strong support to the claim the data does not give strong support to the claim that the true average differs from 130। ठीक है, कि आपने एक सैंपल लिया, उसका 131.08 आ गया, लेकिन वो हमारे क्लेम को सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब वो मैन्युफैक्चरर के क्लेम को सपोर्ट कर रहा है कि ट्रू एवरेज 130 से अलग नहीं है। रिसर्चर का हाइपोथेसिस गलत है, मैन्युफैक्चरर जो कह रहा है वो ठीक है हमारे डेटा के बेसिस पे, लेकिन ये जब हम स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हम कितनी एरर अज्यूम कर रहे हैं कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो सकता है, 1% लेवल ऑफ 1% एरर हो सकता है। 1% एरर का क्या मतलब हुआ कि 100 में से 1% एरर का कि 100 सैंपल में से एक सैंपल ऐसा हो सकता है, एक सैंपल ऐसा हो सकता है जिसमें एक्चुअली में जो है आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, जिसमें एक्चुअली में आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है। कि अभी सी दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर इज कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब इस केस में तो आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, इस केस में आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, कितने लेवल पे, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। ठीक है, तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये मतलब आपके डिसीजन में 1% का एरर है, आपके डिसीजन में 1% का एरर है कि एक्चुअली में नल जो है वो फॉल्स था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली में जो नल फॉल्स था लेकिन आपने उसको जो है उसको रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो आपने बस यही लिखना है दैट द डेटा डज नॉट गिव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द क्लेम दैट द ट्रू एवरेज डिफर्स फ्रॉम 130। दैट द ट्रू एवरेज, क्योंकि जो हमने कैलकुलेट की वैल्यू वो क्रिटिकल या रिजेक्शन रीजन में फॉल नहीं कर रही है। ठीक है, even though the theory is kind of difficult but question is simple, find out the critical value of z and then compare it, find out the calculated value, calculate the z value and compare it with the critical value, ठीक है ना। अब इसमें वेरिएशन क्या क्या होगा, तो I say that अगर x bar follows a normal distribution with mean mu and variance sigma square, देन z कैसे कैलकुलेट हो रहा है, एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन से। एक्स बार z कैसे कैलकुलेट हो रहा है, एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन से। ठीक है, ओनली इशू इज कि अगर नाउ सपोज इफ n इज ग्रेटर देन 30 एंड सिग्मा इज अननोन, n इज ग्रेटर देन 30 एंड सिग्मा इज अननोन। ठीक है, अगर n जो है 30 से बड़ा है और सिग्मा जो है अननोन है, तो उस केस में आप क्या करोगे, सिग्मा इज पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन कभी कभी अननोन होता है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन अननोन होती है, तो उस केस में आपको क्या दे रखा होगा, सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा होगा। उस केस में आपको क्या दे रखा होगा, सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा होगा, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस,
S. तो आप क्या करोगे, you will simply replace sigma by capital S. You will simply replace sigma by capital S. तो Z इस केस में क्या हो जाएगा, तो Z will become x bar minus mu by S by root n. तो अभी भी आप स्टैंडर्ड नॉर्मल से ही उसको कर पाओगे, ठीक है, अभी भी आप उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल से ही कर पाओगे। अगर n लेस देन 30 है लेकिन सिग्मा नोन है, तब तो ये वाला फॉर्मूला चल जाएगा। n दिक्कत कब है, जब आपका सिग्मा अननोन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है। तो उसमें दो केसेस हैं कि अगर n ग्रेटर देन 30 है एंड सिग्मा अननोन है, तो सिंपली आपने जो है स्टैंडर्ड डिविएशन को जो है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन को सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब दूसरी दिक्कत है कि इफ n इज लेस देन 30 एंड सिग्मा इज अननोन, n इज लेस देन 30 एंड सिग्मा इज अननोन, तो उस केस में क्या दिक्कत होती है कि आप सिंपली जो है सिंपली सिग्मा को s से रिप्लेस नहीं करते। उस केस में x बार माइनस म्यू बाय s बाय रूट n, it follows a t distribution, with n minus 1 degrees of freedom. It follows a t distribution with n minus 1 degrees of freedom. अगर आपका जो है ये जो है n लेस देन 30 है एंड सिग्मा अननोन है, तो आप S को रिप्लेस तो करते हो सिग्मा से, बट ये Z नहीं रहता, ये एक नया डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है विच इज अ टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बाकी सारा प्रोसीजर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सेम रहेगा, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है चेंज हो जाएंगे अगर n लेस देन 30 एंड सिग्मा अननोन है, ठीक है। तो मैं इसके भी दो क्वेश्चन डिस्कस करके देन वी विल फिनिश ऑफ दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसके बाद we will actually move on to hypothesis testing in regression, कि regression में इसका क्या यूज है hypothesis testing का, ठीक है। So now the question is, a random sample of boots worn by 36 soldiers in a desert region. A random sample of boots worn by 36 soldiers in a desert region showed an average life of 1.08 years with a standard deviation of 0.6 years. Under the standard condition, the boots are known to have an average life of 1.28 years. The boots are known to have an average life of 1.28 years. Is there a reason to assert at 1% level of significance that
use in desert causes the mean life of such boots to decrease. What will be your conclusion? If the level of significance, is 5%, assume that the life of boots is normally distributed. So a random sample of boots, हमने एक सैंपल चेक किया 36 सोल्जर्स का इन अ डेजर्ट रीजन, जिनकी उनके बूट्स की जो एवरेज लाइफ है वो 1.08 ईयर्स आई एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 0.6 ईयर्स है। तो अब पहली चीज आपने क्या ध्यान रखी कि यहाँ पर सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है क्योंकि उन सोल्जर्स के सैंपल का है। अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, तो जो जनरल इंप्रेशन क्या है, जो जनरल नॉलेज क्या है कि बोट्स की एवरेज लाइफ 1.28 ईयर्स होती है। तो जनरल नॉलेज क्या है कि बोट की जो एवरेज लाइफ है वो 1.28 ईयर्स होती है। Is there a reason to assert at 1% level of significance that use in desert causes the mean life of such boots to decrease? So what is the null hypothesis here? Null hypothesis है कि जनरली assume किया जाता है कि जो मीन लाइफ ऑफ बूट्स है वो 1.28 है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो रिसर्चर का हाइपोथेसिस है कि क्या डेजर्ट में यूज करने से जो एवरेज लाइफ है वो 1.28 से कम हो जाती है। इसको किस बेसिस पे चेक कर रहे हैं? हमने एक सैंपल ऑफ बूट्स लिया, ठीक है, कितने सोल्जर्स का, 36 सोल्जर्स का, जिसमें उनका जो आंसर आया 1.08। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या 1.08 जो है वो 1.28 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कि नहीं, स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है कि नहीं। न्यूमेरिकली तो डिफरेंट है, बट वेदर इट इज स्टैटिस्टिकली डिफरेंट और नॉट, या ये सिर्फ एक चांस की बात है, ठीक है, कि 1.08 आ गया। सो व्हाट वी आर चेकिंग इज कि वेदर 1.08 is statistically different from 1.28 or not, or whether it is due to chance, ठीक है। so now this becomes your left tailed hypothesis। मैंने क्वेश्चन यही बताने के लिए, this becomes your left tailed hypothesis, ठीक है। so your x bar is normally distributed with mean 1.28, ठीक है, और हमारा जो मीन आया वो आया 1.08। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? z में। तो 1.28 के लिए तो z 0 ही होगा, 1.08 के लिए z निकालोगे तो z calculated is equal to 1.08 minus 1.28। अब जनरली क्या होता है? तो z is equals to x bar minus mu by sigma by root n होता है। अब इस केस में सिग्मा नहीं दे रखा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दे रखा, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है। सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन 0.6 है, लेकिन क्योंकि इसमें n ग्रेटर देन 30 है तो सिंपली आपने जो है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन को s से रिप्लेस कर दिया। तो s इस केस में क्या है आपका? तो s इस केस में जो है आपने सिंपली इसको रिप्लेस कर दिया। तो s इज योर 0.6, sample standard deviation is 0.6 and by root n, तो root n is root 36, ठीक है। तो z कैलकुलेटेड क्या आया आपका? 1.08 minus 1.28, तो minus 0.2 by 0.6 by 6 minus 0.2 by 0.6 by 6, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है -2, ये आंसर आ रहा है -2, ठीक है। ये क्लियर है? तो यानी कि हमारा z कैलकुलेटेड जो आया वो आया -2। अब आपने इसमें चेक करना है कि दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यूज क्या है।
लेफ्ट टेल्ड टेस्ट के लिए ठीक है, तो पहले 1% पे चेक करना है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्रिटिकल वैल्यू क्या है। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर है, आप जो है टेबल से भी याद रख सकते हो, मतलब या एग्जाम में आप डिराइव भी कर सकते हो। तो ये 0 है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1% है और लेफ्ट टेल्ड है, सो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 1% मीन्स 1/100, so it is equal to 0.01. So this value becomes 0.5 minus 0.01, so it is 0.49. It is 0.49. ठीक है, और तो आपने टेबल से चेक किया तो 0.49 अगेन हमने चेक किया, तो ये आया, तो दिस इज 2.33, दिस इज 2.33, तो ये वाली वैल्यू हो गई -2.33, so that means -2.33 ये वाला आपका रिजेक्शन रीजन है। अब जो आपने कैलकुलेट किया वो कहाँ पर आया, आपने कैलकुलेट किया -2, वो भी इधर रिजेक्शन रीजन में ही आया, वो आपका रिजेक्शन रीजन में आया। तो सिंस योर z कैलकुलेटेड which is equal to -2 is less than which is equal to -2 is less than तो इन दिस केस सॉरी -2 इधर आएगा क्योंकि 0 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, -2 इधर आएगा। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन, so your critical value is 0 and this is -2.33, so this is your rejection region, this is the rejection region, ठीक है। अब आपको पता है नेगेटिव वैल्यूज में तो -2 इधर आया, -2 जो है वो इधर आया, तो -2 बड़ा है कि -2.33 बड़ा है, नेगेटिव वैल्यूज में -2 बड़ा है, ठीक है। so your z calculated or what you can say कि your z calculated is -2 which does not lie in the critical or the rejection region, which does not lie in the critical or the rejection region, ठीक है। कि अगर -2.33 से छोटी कोई वैल्यू होती, -2.33 से छोटी कोई वैल्यू होती, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते, लेकिन इसमें -2 आई वैल्यू आपकी, ठीक है, जो कि रिजेक्शन रीजन के बाहर है। hence we do not reject the null, at 5% level of significance, at 1% level of significance। इसका क्या मतलब है, it seems that, ठीक है, तो हमारा नल क्या था, हमारा नल था that your मीन जो है वो 1.28 है, एवरेज जो स्टैंडर्ड है, और ऑल्टरनेट क्या है कि डेजर्ट में यूज करके 1.28 से कम हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे, तो हम इसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब ठीक है, इम्प्लिसिटली हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इट सीम्स दैट द एवरेज लाइफ ऑफ बोट does not reduce with the use of the boots in the desert at, and this statement is true at
1% level of significance. This statement is true at 1% level of significance. This statement is true that when we are making this statement and the probability of error is 1%. And we are making this statement and the probability of error is 1%. ठीक है, probability of type 1 error. Actually when you जो मैंने पहले भी कहा था कि जब आप जो है null को reject नहीं कर रहे हो, when you are not rejecting the null, तो आप सिर्फ it seems that the average life of boot does not reduce with the use of the boots in the desert तक भी. Even in this case you don't need to specify कौन सा level of significance है, because आप एक ऑलरेडी एक्सेप्टेबल थ्योरी को ही आप जो है मान के चल रहे हो कि हाँ वही ठीक है, तो आपने इसमें कुछ प्रूव नहीं किया. तो इवन इफ यू डोंट राइट, जब आप नल को रिजेक्ट कर रहे हो तब बहुत जरूरी होता है लिखना कि आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, that we may be wrong in our decision. ठीक है. Now अगर यही क्वेश्चन हमें 5% लेवल पे करना होता, at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना होता, तो at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्रिटिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपने सिमिलरली क्या होगा, ये 0 होगा. ठीक है. तो दिस क्रिटिकल वैल्यू इज अल्फा बाई 2, so it is equal alpha, so it is equal to 0.05, so this is 0.45. तो इस केस में z की वैल्यू क्या आएगी, तो आपने वही 0.45 का 0 में देखना. 0.45 का अगर आप 0 में देखोगे, मतलब प्रोबेबिलिटी 0.45 है आपकी, तो प्रोबेबिलिटी इज 0.45, तो ये आ गया 1.65, तो ये आ गया 1.65. तो इस केस में क्रिटिकल वैल्यू इज माइनस 1.65 सिंस इट्स लेफ्ट टेल टेस्ट. और आपके जो z की वैल्यू आई है वो आई है -2. तो आपकी z की वैल्यू इधर कहीं लाई करेगी, क्रिटिकल रिजेक्शन रीजन में ही लाई करेगी -2. So in this case, see rejection region, how do we define in this case rejection region? So you will reject if z calculated is less than -1.65. If z calculated is less than -1.65 और हमारा जो z calculated है वो -2 है, जो कि -1.65 से कम है, तो अगर 5% पे हम बात करें तो we will reject the null at 5% level of significance. कि अगर आप अपनी probability of type 1 error बढ़ा दी कि हाँ अब हम जो है ज़्यादा मतलब कि अब हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो उसमें एरर भी इंक्रीज हो रहा है कि अब 5% एरर चांसेस हैं कि हम अपने नल को रिजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, नल को तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि एवरेज लाइफ जो है सही में रिड्यूस हो जाती है, लेकिन 5% केसेस में शायद रिड्यूस ना हो, 5% केसेस, लेकिन देयर इज अ 5% प्रोबेबिलिटी कि ऐसा ना हो. ठीक है. तो इन दिस केस तो आपका जो डिसीजन है इट चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है. तो वो इस क्वेश्चन का पॉइंट था. ठीक है. सिंपली समरी आपने याद रखना है कि क्वेश्चन में जो दे रखा है उसकी वैल्यू निकालो, z की वैल्यू निकालो, उसको क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करो. अगर वो रिजेक्शन रीजन में आ रहा है तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, रिजेक्शन रीजन में नहीं आ रहा तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हो. ठीक है. लास्ट इसमें जो है टी टेस्ट वाला हमें यूज करना है. तो टी टेस्ट आपने कब यूज करना है, जब मैंने बताया कि इफ सिग्मा इज अननोन, population standard deviation is unknown and n is less than 30, we use t-test. ठीक है. t भी कैलकुलेट वैसे ही होगा, we use t-test. t भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा, that t would be equal to x bar minus mu by s by root n होगा. लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि t की जब वैल्यूज टेबल में से चेक करोगे तो वो n-1 पे चेक करनी है. n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें होती है. ठीक है. डेरिवेशन नहीं करा रहा मैं अगेन, आपने इसको n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए आपको इसको सेट करना है. n-1 डिग्रीज ऑफ, ये भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होता है, ये भी एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है. ठीक है.
ये देख, तो इसमें भी अगर जैसे सपोज टू टेल टेस्ट है तो यहाँ अल्फा बाई टू हो जाएगा, यहाँ अल्फा बाई टू हो जाएगा, यहाँ अल्फा बाई टू हो जाएगा, यहाँ अल्फा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टी की वैल्यूज चेक करोगे, टी टेबल की, तो ये टू टेल्ड टेस्ट में होगा, बाकी आपके सेम आंसर्स आएंगे, मतलब सेम रिजेक्शन रीजन वाले रूल्स फॉलो होंगे। अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये राइट टेल टेस्ट हो जाएगा जिसमें प्रोबेबिलिटी अल्फा हो जाएगी राइट में, और ये लेफ्ट टेल टेस्ट हो जाएगा जिसमें प्रोबेबिलिटी आपकी अल्फा हो जाएगी लेफ्ट में। ठीक है, इफ यू विल सी, तो टी टेस्ट की टेबल लुक्स लाइक दिस। और टी टेस्ट की टेबल लुक्स लाइक दिस। तो इसमें जो है आपको दो रोज है, एरिया इन वन टेल एंड एरिया इन टू टेल, एरिया इन वन टेल एंड एरिया इन टू टेल। तो इसमें हमेशा याद रखना है कि सपोज मैं बोलूँ 5% अल्फा इज इक्वल टू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपको चेक करना है। ठीक है, इसको अगर आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है, तो अगर टू टेल्ड टेस्ट है, तो अगर टू टेल्ड टेस्ट है तो आप इसको जो है किस पे चेक करोगे? तो अगर टू टेल टेस्ट है तो यहाँ पर टू टेल लिखा है तो आप 0.05 पे चेक करोगे, तो आप 0.05 पे चेक करोगे। अगर वन टेल टेस्ट है तो 0.05 फिर आपको इधर देखना पड़ेगा, अगर वन टेल टेस्ट है तो आपको 0.05 फिर इधर देखना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है। तो आपको जैसा टेस्ट है टू टेल वन टेल, उस हिसाब से जो है आपको ये टी की वैल्यूज चेक करनी है। तो जो आपको टेबल से मिल रही हैं, तो जो टेबल से मिल रही हैं, तो टेबल की वैल्यूज आपको क्रिटिकल वैल्यूज दे रही हैं। ठीक है, यू हैव टू कंपेयर देम with calculated values. You have to compare them with calculated values. You'll have to compare them with calculated values. Okay. Now let us do some examples. I'll do two numericals and then I'll finish it. First is 10 cartons are taken at random. 10 cartons are taken at random from are taken at 10 cartons are taken at random from a factory. The mean net weight of the 10 cartons is, the mean net weight of the 10 cartons is 11.8 kilogram, and standard deviation is 0.15 kilogram. Okay. Does the sample mean differ significantly from the intended level of 12 kilogram, and you have to check at 5% level of significance. You have to check at 5% level. तो हमने एक फैक्ट्री से 10 कार्टन लिए और उनका हमने जो है वेट चेक किया, तो उन कार्टन का वेट आया 11.8 किलोग्राम एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 0.15 किलोग्राम आई। तो हमें ये बताना है कि डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंटेंडेड लेवल। तो नॉर्मली ये क्या अज्यूम किया गया कि उनका जो एवरेज वेट है, मतलब वेट है वो 12 किलोग्राम है, लेकिन हमारे सैंपल का जो वेट आया वो 11.8 किलोग्राम आया। ठीक है, तो क्या ये इतना डिफरेंट है, क्या ये सही में इतना डिफरेंट है, या चांस की बात है कि हमारे पास एक ऐसा सैंपल आ गया। ठीक है,
So your H naught is that mean is equals to 12, and the alternate hypothesis is that mean is not equal to 12. That mean is not equal to 12. ठीक है. अब इसमें फर्क क्या है पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें n जो है आपका 10 दे रखा है, n is 10 and sigma is unknown. n is 10 and sigma is unknown. ठीक है, तो इसमें आप z नहीं यूज कर पाओगे. We can't use z. So we'll have to use t. तो t का फॉर्मूला वही है, x बार माइनस म्यू, सिग्मा की जगह s बाय रूट n हो जाएगा. ठीक है, तो हमें किसके लिए चेक करना है, हमारा x बार क्या है, जो हमारा सैंपल मीन आया वो क्या है 11.8. जो हमारा सैंपल मीन है वो है 11.8. तो इसके लिए टी टेस्ट क्या है, तो टी की वैल्यू आएगी 11.8 माइनस 12 बाय एस बाई रूट एन. तो एस कितना है 0.15 बाय रूट एन इज 10. ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे so when you solve this you'll get the answer that is equal to minus 4.21. It is equal to minus 4.21. Now since it is a two-tailed test, it is better that we take the mod value. It is हमेशा जो है, so it is mod t calculated is equal to 4.21. ठीक है, is equal to 4.21. Now you have to compare this with the, so since value calculate हुई तो आप इसको small t से भी लिख सकते हो. ठीक है, you have to compare this with t critical value. critical value कैसे आएगी, critical value आएगी जब आपने जो है t अगेन इसका मीन 0 है. ठीक है, दोनों साइड से आपने अल्फा बाई टू जो है वो कर दिया. ठीक है, तो आपने बस ये चेक करना है, तो आपको टेबल में दे ही रखा है कैलकुलेट करके, दे ही रखा है. तो टी क्रिटिकल की वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर अ टू टेल्ड टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो यहाँ पर हमने देखा टू टेल्ड टेस्ट ये वाला है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में. ठीक है, टी क्रिटिकल की वैल्यू. ना अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए देखना है. तो क्योंकि 10 था हमारा सैंपल साइज, तो n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए इट इज 2.262. ठीक है, तो n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए, so your t critical is equals to 2.262. Your t critical is equals to 2.262. ठीक है, so that means this value is 2.262. अब आपकी जो वैल्यू आई वो 4.21 आई, तो वो रिजेक्शन रीजन में लाई करेगी, क्योंकि वो इधर कहीं होगी, इधर कहीं होगी, इससे बड़ी है. तो सिंस जो आपने कैलकुलेट किया, सिंस t कैलकुलेटेड, तो दिस इज t क्रिटिकल को कैसे डिनोट करेंगे, t, क्योंकि हम टू टेल्ड टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं t अल्फा बाई टू फॉर 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अल्फा बाई टू रिप्रेजेंट कि ये टू टेल्ड टेस्ट है, क्योंकि अल्फा बाई टू इधर है, अल्फा बाई टू इधर है. तो सिंस t कैलकुलेटेड, आपने जो कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू 4.21 आई, इज ग्रेटर देन t क्रिटिकल, यानी कि आपके जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है. तो वी रिजेक्ट द नल एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. आप रिजेक्ट कर रहे हो नल को एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. So this basically means that the sample mean differs significantly from 12. That the sample mean, ठीक है, differs. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, that the sample mean जो कि 11.8 आया था, sample mean differs
significantly from the intended mean of 12 kilogram. Sample mean differs significantly from the intended mean of 12 kilogram. ठीक है, दिस इज योर टी टेस्ट. सेम वही है, बस आपकी टेबल से क्रिटिकल वैल्यूज चेंज हो गई है. सेम वही है, टेबल से क्रिटिकल वैल्यूज चेंज हो गई है. ना एक इसका एप्लीकेशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एडवर्टाइजिंग में होता है. इसका तो द मीन weekly sales of a chocolate, the mean weekly sales of a chocolate was 146.3 bars per store. The mean weekly sales of a chocolate was कि हर स्टोर में जो है on an average इतनी बार बिक्री थी. ठीक है. After an advertising campaign, the mean weekly sales in 22 stores, for a typical week, the mean weekly sales in 22 stores for a typical week increased to 153.7 and showed a standard deviation of 17.2. ठीक है. was the advertising campaign successful? ठीक है. तो बिना एडवर्टाइजिंग के हर हफ्ते जो है 146.3 चॉकलेट बार स्टोर हो रही थी. अब हमने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन किया और फिर हमने 22 स्टोर्स का डेटा देखा. तो हर स्टोर पे ऑन एन एवरेज 153.7 बार जो है वो बिक रहे हैं. तो हमें बताना है कि क्या ये एक सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फिगर है फ्रॉम ओरिजिनल विच इज 146.3. ठीक है. So your null hypothesis is that mean is equal to 146.3 and the alternate hypothesis is that the mean has increased from 146.3 after the advertising campaign. ठीक है. आपका जो पर्टिकुलर x बार है, तो क्योंकि वैल्यू है तो स्मॉल से डिनोट किया. x बार की वैल्यू इज 153.7 एंड n जो दे रखा है वो 22 दे रखा है एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन जो s है, क्योंकि सैम्पल की स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 17.2. क्योंकि इसमें n 30 से कम है इसलिए हमें टी टेस्ट लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो आपने t की वैल्यू कैलकुलेट की. तो t की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जब मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब फॉर्मूला लिख रहे हैं तो कैपिटल T यूज करो. जब वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो स्मॉल t यूज करो. तो इट इज x बार माइनस म्यू बाय s बाय रूट n. तो x बार इज 153.7 minus mu is 146.3 by s by root n. So s is 17.2 and your root n is root 22. It is root 22. ठीक है. So this becomes 153.7 minus 146.3 upon 17.2 divided by root 22. तो इसका आंसर आ रहा है 1
आंसर कुछ आएगा 2.01. इसका आंसर आया 2.01. So this is something which you have calculated. This is something which you have calculated. Now this is a right tailed test. This is a right tailed test. तो इसमें जो रिजेक्शन रीजन होगा टूवर्ड्स द राइट होगा. नल को रिजेक्ट करने के लिए सफिशिएंटली हायर वैल्यू होनी चाहिए मीन से. ठीक है, नल को रिजेक्ट करने के लिए सफिशिएंटली हायर वैल्यू होनी चाहिए मीन से. तो अगर आप टी के उसमें कैलकुलेट करोगे क्रिटिकल में, तो दिस वैल्यू, तो आपने क्या चेक करना है, टी क्रिटिकल, you have to find out the value at 5% level of significance. अगर आपको level of significance कुछ नहीं दे रखा तो आपने 5% ही लेना है. But now this is a one tailed test. This is a one tailed test और आपको n is equals to 21 पे चेक करना है. n is equals to 21 पे. तो हम टेबल में गए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 21 देखा, वन टेल्ड टेस्ट है 0.05, 21, so it is 1.721. It is 1.721. ठीक है, it is 1. So how do you write this? That t 0.05 because it is one tailed only, तो अल्फा आएगा, and 21 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए it is 1.721. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप t के टर्म्स में देखोगे तो दिस इज 0. 1.721 के ऊपर रिजेक्ट करते हैं हम. ठीक है, लेकिन आपकी 1.721 के ऊपर रिजेक्ट करते हैं और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है 2.01, जो कि रिजेक्शन रीजन में आ रही है, हेंस वी रिजेक्ट द नल, at 5% level of significance, because why? Because your t calculated is greater than the t critical value. But there is an error of 5%. मतलब 5% एरर की प्रोबेबिलिटी है. 5% एरर की प्रोबेबिलिटी है कि हमने सही नल को रिजेक्ट कर दिया, कि नल एक्चुअली में जो है 146.3 ही था, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया. मतलब 5% चांसेस हैं इसके, अदरवाइज तो ये ठीक ही होगा. अदरवाइज तो 95% कॉन्फिडेंट है कि ऐसा ही हुआ. तो हेंस वी रिजेक्ट द नल एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो दिस बेसिकली मीन, क्योंकि आप नल को रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब मीन आप ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट कर रहे हो. ठीक है, हेंस the advertising campaign seems to have been successful. Hence, the advertising campaign seems to have been successful. Advertising campaign seems to have been successful. Okay. So I hope this is clear. So this basically completes. So your testing of mean. ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ मीन. अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी टॉपिक है पी वैल्यू टेस्ट, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो आई गिव वन वीडियो फॉर पी वैल्यू जो कि इससे रिलेटेड है. देन देर आर क्वेश्चन ऑन, देन वी विल डिस्कस व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ मल्टीपल क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, क्योंकि अभी तक हमने 2 वेरिएबल के अजम्पशन डिस्कस किए थे मल्टीपल क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के. Then hypothesis testing in classical linear regression model. Then hypothesis testing in classical linear regression model. ठीक है, so I'll take a doubt session next week. So if you have any doubts, you can clear them.